So hi guys, welcome back to the Average Vlogs. And today this is the second episode of our podcast, Common Man with Special Views. And today we have Manya Kalra. Hi, I'm Manya Kalra. I passed out from modern school Barakhamba, and I had humanities with applied maths. Yeah, maybe like a bad thing to say. But now I'm currently studying at UniMelb, University of Melbourne, and I'm studying BA Economics. Yeah, that's it. I just got 18 like super recently. That's all to say. So you have completed your first semester. Yeah, I'm done with the first sem. So now let's start everything from the beginning. Okay. How was the experience doing your 10th and 11th during the pandemic era? 10th and 11th was COVID So time. it was easy. Like, did you give 10th ke board exams or not? I did not. Like the bad thing is कि मेरे half yearlies में बहुत गंदे आए थे, मेरे pre-boards में और भी गंदे आए थे. But जब मेरे second pre-boards हुए, I scored like school की तरफ से होते. So when they were like mock pre-boards, उस time I got like 96, 97. But मेरी 10th की percentage is 89% because वो पिछले assessments के based में So it was like predicted grades के हिसाब से थे and सारा screw up हो गया. But 12th में 12th में ठीक आ गए थे. academic comeback आया था. Applied maths की वजह से गिर गया. Applied में 70 आए थे. Applied होते हुए भी. But best of 4 was 96.7, so वो अच्छा था. And that's why I got UniMelb. Scholarship नहीं मिली, but I've ended up at a good place, Melbourne में. So now let's go on a college के application process, which generally starts from class 11, I guess, or class 10. Okay, so college admissions के लिए one thing that everyone strikes for is like a good profile background. Like आपकी CV अच्छी होनी चाहिए. You can start from 9th. Workshops 9th से शुरू कर दो. अच्छी extra language हो वो. That's like preferable. It is good to say कि even Melbourne अभी I'm studying Spanish. I've taken Spanish for my second sem. अच्छा रहता है. अगर आपने Delhi दे रखा हो Spanish में, French का I don't know कौन सा होता है. Better. Then you can do research papers. That's what I've seen. Psychology के बच्चे research paper बहुत करते हैं. मैंने law में किया था. उस टाइम मुझे लॉ करना था. तो उसका ISN नंबर आपको मिला था like for your official research paper which you published in the journal? हाँ मतलब मेरे पास है. Like I have a link that you can access मेरा paper through. तो मेरा पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया. उसकी फी लगती है, पब्लिशिंग फी लगती है 2000 हो गया सब. देन लैंग्वेज हो गया, रिसर्च पेपर हो गया. देन यू कैन डू सोशल वर्क इज लाइक 60 आवर्स कर लो, बहुत है. यू कैन बी वॉलंटरी एजुकेटर, डांसर, सिंगर, एनीथिंग. उसके बाद what else can you do? Oh, you can start your own startups or own initiatives. जैसे मैंने किया था, कॉप फेयर किया था, सस्टेनेबल बना दिया था कंपनीज को. तो मैंने प्लास्टिक की पैकेजिंग को कॉर्न स्टार्च की पैकेजिंग के साथ रिप्लेस कर दिया. 2-3 कंपनीज ही थी, बहुत छोटी छोटी, बट स्टिल. उसके बाद गर्ल अप फाउंडेशन था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. फीमेल्स को सैनिटरी प्रोडक्ट्स दिए थे, हाइजीन प्रोडक्ट्स दिए थे, फूड देते थे, नॉलेज देते थे पीरियड्स के बारे में. दैट इज़ व्हाट आई डिड. आई जस्ट डिड 5-6 थिंग्स. उससे मेरा प्रोफाइल थोड़ा सा बूस्ट अप हो गया था. एकेडमिक ग्रेड्स ऑब्वियसली अच्छे होने चाहिए. आप 60% आ रही है और आपके क्या आप ऑक्सफोर्ड जा रहे हो स्कूल, समर स्कूल करने. दैट डजंट मेक सेंस ऑब्वियसली. Yeah. Academic. Did you go for any summer schools? I did not, but I would say definitely go for summer schools. आपका दिमाग खुल जाता है. Your experience makes sense. Oxford जा रहे हो, you learning from people. You'll meet South Indians, you'll meet Britishers. Only if it's in budget. और budget में. Only if it's in budget. budget में. But अगर आप डिजाइनिंग में हो, ऑटोमोबाइल डिजाइन करनी है, इंडिया में super cool workshops हैं. Yeah. But marks को definitely 90 above होने चाहिए marks. 90 above होने चाहिए. And secondly, you were from modern school, Barakhamba. So how was the feeling? Why do we call you guys modernite? Like, what's so special about your school? Okay, one thing that I feel is that modern में अगर बच्चे opportunity का use उठा लें तो उठा लेंगे और अच्छा कर जाएंगे. Like हमारा batch ऐसा था. Board batch था पहली बात तो ये. पास हो गए. Like हमारा batch था. One of my batchmates went to Harvard on 100% scholarship. Oh. That's like a big deal. People went to UPenn. People have gone through different countries. Like hospitality में गए हैं, अशोका में गए हैं, इंडिया में भी रहे हैं. So I came on radio for 3 days 94.3 पे. So अगर opportunities उठाओगे तो बहुत हैं. That is what I feel दूसरे schools में नहीं है. DPS में comparatively कम होगा. And reputed school है तो चलता हुआ आ रहा है probably. But that's what I've seen. Like, हाँ मतलब बात करते हैं and then people ask कहाँ से हो, then say modern school and they say of course you are. And I'm like, what is that supposed to mean? Do you feel like you're the stereotypical modern school kid, like the spoiled brat? भाई वो MSVV वाले हैं. MSV के वाले are good. अच्छा VV वाले are more spoiled. I cannot, but BK वाले are better. Did your batch have those people who were into drugs or all that substance abuse?
stuff. यार ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो होती ही है, बट हाँ, वो इतना तो होती इतना है। सीरियस केस नहीं था कि मतलब कुछ जितना लोगों ने बनाया हुआ है लाइक इतना मैंने नहीं ऑनेस्टली। आप जीडी गोइंग का मैं करूँगा तो जीडी गोइंग का बच्चा हमसे भी ज़्यादा स्पॉइल्ड है। हाँ So then again, modern school के बच्चे know when to balance and how to balance, when to stop, not to stop. They know what to do. Crazy बात। तो बस ये कहते हैं this is like this trend people saying like modern people bad and all that stuff. भाई it's It's very down to earth. हाँ, down to earth नहीं, but arrogance भी आएगी, but वो इसलिए आएगी because we've earned that. हमने मेहनत करी है obviously। हमारी सीरीज देखोगे बहुत बेटर होंगी बाकी बच्चों से। Not that it's like nepotism, no. We've gotten chance to prove ourselves. We've got better, but we've got better opportunities, but we've taken use of it and हम नहीं। So as you said, you went to Australia. I would like to ask why Australia? Like people जाते हैं USA जाते हैं, कनाडा जाते हैं, UK जाते हैं. Why Australia? अच्छा तो 2-3 कंट्रीज में सब जाते हैं। फर्स्ट यूएसए है, सेकंड कनाडा है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। अच्छा ओ। और यूके भी, हाँ सॉरी 4 हो गई देन। ओके सो मैं एक एक कंट्रीज कट ऑफ करूंगी कि मैंने क्यों हाँ आप अपने हिसाब से करूंगी। ठीक है, यूएस मेरा यूएस से कभी मन नहीं था। अमेरिकन ड्रीम मेरा ड्रीम नहीं था आईवी लीग में होना। मेरा था कि मुझे अच्छी रैंकिंग में चाहिए, अच्छी सेफ कंट्री में चाहिए, सेफ कंट्री। और यूएस मुझे पसंद नहीं था, LGBTQ+ बहुत ज्यादा फैला हुआ है वहाँ पे। आई डोंट लाइक ऐसी कंट्रीज। इतनी ओपन माइंडेड कंट्रीज मुझे पसंद नहीं है। ओपन माइंडेड कंट्रीज मुझे पसंद ही नहीं है। ठीक है कि मैं घर आऊं कल्चर शॉक लग जाए कि क्या हो गया। नो आई डोंट वांट सच कंट्रीज। एंड यू वांटेड सम ब्रिटिश कॉलोनी आल्सो सो दैट कल्चर इज द सेम रहे। हाँ तो यूएस मुझे पसंद नहीं था। सैट मैं व्हाट्स द पॉइंट, अगर मैं स्कर्ट पहन रही हूं पीपल लुकिंग बैक एट मी सेइंग मी आई डोंट वांट दैट। तो कनाडा वो सेकेंडली सिख पॉपुलेशन बहुत थी वहाँ पे। मुझे मतलब नॉट दैट बट मैं इंडियन से निकलना चाह रही हूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी जो सिख पॉपुलेशन है लाइक नॉट एज कंपेयर्ड टू कनाडा बट ऑस्ट्रेलिया में भी तो ज्यादा बहुत कम मिली है पर्सनली। ऑस्ट्रेलिया पे आती हूँ क्या मुझे डिसएडवांटेजेस लगे। तो कनाडा का वो एंड प्लस सब मुझे यूबीसी टोरंटो उसमें सॉरी यूबीसी जाना था। अच्छा यूबीसी वैंकूवर वाले में जाना था। 2 कैंपस है, ओकनागन और वैंकूवर, उसमें जाना था। मैंने जिन बेकार बच्चों को देखा है सब यूबीसी गए, सब यूबीसी। मेरा मन उतर गया वहाँ से कि मैं ऐसे बच्चों के साथ नहीं पढ़ूंगी। बट डिड यू अप्लाई टू यूबीसी? अप्लाई, स्कॉलरशिप मिल गई $20,000 की। अच्छा। और टोरंटो में फुल स्कॉलरशिप मिल गई, फुल स्कॉलरशिप मिली बट नहीं गई मैं। और कनाडा का क्लाइमेट आई कैन नॉट। ऐसी प्रॉब्लम्स थी मतलब अपनी लाइफ में जैसे इनकी थी। कनाडा का ना वेदर बहुत वो है, ठंडा है, मेरे से वक्त नहीं होता। अब दिल्ली की ठंडी हो पा रही है, स्टिल शिवरिंग राइट नाउ। इतने लेयर्स पहन रखी हैं, स्टिल आई एम शिवरिंग। सो इतना नहीं। 3 पॉइंट्स। उसके बाद यूके, मैनचेस्टर में यूके से बताती हूँ मैंने कौन से में किया। 5 कंट्रीज करते हैं मैं बताती हूँ। मैंने ऑक्सफोर्ड में अप्लाई नहीं किया, पता होता वेयर डू यू स्टैंड। आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट इनटू। औकात पता है अपनी। आई डिड टू एडिनबरा, आई डिड टू मैनचेस्टर, आई डिड टू हुइविक, आई डिड टू बाथ। मुझे 5th वाली नहीं पता, 5th वाली मुझे याद ही नहीं। आई गॉट इनटू मैनचेस्टर, आई गॉट इनटू अच्छा आई डिड वॉरिक आल्सो। अच्छा हाँ। वॉरिक में मेरा नहीं हुआ बिकॉज़ मेरे पास अप्लाइड मैथ्स थी। अच्छा। मैनचेस्टर में हो गया, एडिनबरा में हो गया, क्वीन मैरी में हो गया एंड बाथ में भी हो गया। 4 में हो गया था। मैनचेस्टर में ये था बहुत पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। अगेन मुझे इतना वो नहीं करना। मैंने किंग्स में नहीं किया था। किंग्स में आई गॉट टू नो कि वहाँ की इंडियन पॉपुलेशन बहुत है किंग्स में। आई हर्ड आवर स्कूल लाइक जनरली फ्रॉम आवर स्कूल लाइक 30% पीपल गो टू किंग्स ओनली केसीएल जाते हैं सब। एंड लंदन हैव बीन टू इन 7th grade और पता था कि वहाँ का कल्चर थोड़ा बिगड़ा हुआ है। लाइक चिल्ड्रन 7th grade स्मोक देयर। ठीक है, तो यूके मुझे तब से नहीं पसंद आता। नाउ ऑस्ट्रेलिया probably the safest country out there for girls. मुझे लगता है कभी कभी लड़के ज़्यादा मोलेस्ट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। I've seen my friends getting attacked by junkies and than females. So I feel females के लिए बहुत safe है. Obviously अब रात को 12 o'clock you pass by dark alley, not safe. But females के लिए I've seen बहुत ज़्यादा safe है. Boys ज़्यादा मोलेस्ट हुए than I've seen girls. So ऐसे destination आ गई थी. Safe point से definitely tick. Unimalp top 14 या कौन सी क्या कहते हैं अंडरग्रेड एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छा है, 8th इन वर्ल्ड है। इको ऑनर्स यू डिड? आई एम डूइंग इको ऑनर्स के लिए अभी एक और ईयर आई विल ऐड ऑन। 4th ईयर या अगर मेरा ग्रेड अच्छा है तो आई विल ऐड। बट हाँ मैं सेइंग कि बहुत अच्छे स्टार्ट्स थे उसके, एम्प्लॉयबिलिटी रेट बहुत अच्छा था, टिक सेफ था, टिक इंडियन की परसेंटेज कम थी, इंटरनेशनल रेशो बहुत अच्छा था। आई डोंट रिमेंबर द रेशो बट मैंने चेक किया था कनाडा में कुछ 80-20 का रेशो था इंडियंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट का, इसमें बहुत कम था। टिक बिकॉज इंडियन से दूर जाना था। टिक
3 points हो गए, उसके अलावा और आई डोंट थिंक कुछ था. आइल्स चलते थे. आई गॉट गुड स्कोर. आइल्स देने पड़े थे. आइल्स देने पड़े थे. Despite like being from a English medium school. इंडियन मीडियम को आपको आइल्स देना पड़ता है. For Australia, Canada. अच्छा. रिक्वायरमेंट है. कनाडा में भी है, यूएस में. आइल्स इजी होते हैं like. I found it easy. 1 महीने प्रेप करी थी. YouTube के थ्रू किया. YouTube self study करी. एंड कैम्ब्रिज की बहुत अच्छी बुक आती है. उसमें ना स्टैट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं. स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लिखना होता है. पाइग्राफ में क्या दिखा है आपको. कैम्ब्रिज की बुक करी. 1 महीना YouTube से गाने सुन रही हूँ. सॉरी, YouTube से वीडियो सुनी एंड वो सब हो गया. सारा सेल्फ प्रेप हो गया. 8 बैंड आ गया. एंड ये आइल्स की वन प्रॉब्लम है कि 2 साल चलता है आइल्स. तो अब जब मैं पीआर के लिए अभी कभी अप्लाई करूंगी तो दोबारा आइल्स देना पड़ेगा. वापस देना पड़ेगा. डिस्पाइट डूइंग अंडरग्रेड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली. हाँ देना ही पड़ेगा. आइल्स के एक्सपायर हो जाते 2 साल बाद. तो आइल्स में अच्छे मार्क्स आ गए थे. यूनिमेल्प की बीए की डिग्री इकोनॉमिक्स के लिए अच्छे रैंकिंग थी. टिक 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 सब टिक होता जा रहा था. तो ऑस्ट्रेलिया आ गई. बट स्कॉलरशिप नहीं मिली. मार्क्स की वजह से. मार्क्स की वजह से. बिकॉज मेरे बेस्ट ऑफ 4 क्या था, 5 सब्जेक्ट्स थे. उनमें से मेरा एक माइनर था. माइनर एज इन आप उनको बेस्ट ऑफ 4 में नहीं ले सकते. मेन क्राइटेरिया में मेरा वन वॉज फैशन. मैं उसको बेस्ट ऑफ 4 में नहीं ले सकती. तो मेरा बेस्ट ऑफ 4 88% बैठी थी. बिकॉज मेरा अप्लाइड मार्क्स में 70 आ गए थे. तो बट फैशन को लेके और मैथ्स को हटा के मेरा बेस्ट ऑफ 4 96 हो गया था. तो ग्रेड ऐसी थी 99, 98, 97, 70, 96. कोई नहीं. बट इफ यू डिड गेट स्कॉलरशिप यू वेंट टू योर ड्रीम कॉलेज ओनली. हाँ, तो ये था ANU या यूनिमेल्प. इन दोनों में से कुछ था. इन दोनों में आया था. वरना पापा ने पहले ही बोल दिया था वरना यू सिट हियर यू डू फ्रॉम NMIMS. और अगर अच्छा NMIMS था जाओ वहाँ पे जाओ या वील गेट यू इनटू विप्स. CUET दो. अगर तुमने ये सब कर लिया CUET तो यू विल क्रैक इजीली. CUET में ड्यू के लिए. हाँ, ड्यू के लिए. या विप्स जाओ, IP जाओ. वी वोंट सेंड यू अब्रॉड अगर अच्छा कॉलेज में नहीं हुआ तो. ये बहुत क्लियर था. या मेक सेंस. क्लियर था. तो देन मिल गया. आई मीन लाइक चलो ओके डन. टिक 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 हो गया. बट वन थिंग इन ऑस्ट्रेलिया दैट आई फील बहुत गंदा है वहाँ का हेल्थ केयर. पथेटिक. मुझे माइग्रेन आया था. 6 घंटे हॉस्पिटल में बिठाया. और लास्ट में क्या किया, दवाई खिलवा दी. एस्पिरिन खिलवा दी. खत्म. Pathetic. Never waste your money. Never ever waste your money on हॉस्पिटल में जाने के. Never do that. अपने घर से दवाई लेकर आओ. यार $580 कंसल्टेशन के. $580 इमरजेंसी में रूम रहने के. 580, so somewhere like 6,000 कुछ 1,000 what Australian dollars is 50 rupees something right 55 के आसपास. अच्छा 55 हो गया है. 1000 भी हो तो 60,000 हो गया. अगर $1,000 भी हो तो 60,000 हो गया. 60 लेकर सिर्फ एक हेडेक के लिए. तो एंड यहाँ पे बारे में क्या है, मम्मा मुझे हेडेक हो रहा है कुछ करना. और चला लो फोन. वो फीलिंग कैसी थी द डे यू गॉट टू नो योर मार्क्स? आई वाज क्राइंग बैक टू बैक. ओह बिकॉज़ वो खुशी के आंसू. नहीं वो मैथ्स की वजह से आई वाज स्टक एट मैथ्स. अच्छा एंड आई फेल्ट काश बेटर कर लेती. काश स्कॉलरशिप मिल जाती. इसलिए मिल जाती है. अभी मुझे बैक ऑफ माय हेड लगता है कि काश वो सारी ग्रेड्स ना 90s में होते तो वो कोविड के टाइम पे नहीं स्टडी करी मतलब वो तो नहीं. 12th हमारा पूरा ऑफलाइन था. 12th was 2022. हाँ 2022 टू 2023 का बैच था. 11th के फाइनल्स एंड पूरी 12th ऑफलाइन निकली. तो ऑफलाइन में बैठने का वो तो बन गया था. मतलब बॉडी हो गई थी एडजस्ट कि पढ़ लो 3-4 घंटे. बट वो मैथ्स के लिए अभी भी लगता है. अच्छी मेमोरीज बनाई हाई स्कूल में लाइक फेयरवेल अच्छा गया था. क्रेजी. आई फील मॉडर्न स्कूल has made me what I am today. So that shaped your personality. Crazy. Like I feel I've had one of the craziest experiences. Like this 12th class. 12th class. हाँ 8th भी. 9th में I was struggling because हमारी क्लास शफल हो गई थी. अच्छा. हाँ and I was like fat. तो मतलब I don't know. इतने friends नहीं बनते थे. वो glow up किया. हाँ तो वो glow up हुआ 12th में. 11th कोविड के टाइम और पतला. And I started learning new languages वगैरह. गिटार सीखी. ये सब गिटार सब कुछ किया. सब किया. टाइम वेस्ट भी किया. गीता पढ़नी शुरू करी. सब वो गीता पढ़ी कितनी पढ़ी? या अभी तक तो सिर्फ 3 चैप्टर्स हुए हैं. हाँ बट आर यू लाइकिंग रीडिंग इट? आई लव. क्योंकि अचानक से ट्विस्ट आ गया हमारी पॉडकास्ट में. कहाँ से कॉलेज से गीता आ गई है. मुझे आई एम अ वेरी माइथोलॉजिकल पर्सन. नहीं आई एम वेरी हिंदू बाइस्ड पर्सन. मुझे हिंदुइज्म बहुत RSS. I wish I could get into, but I don't think I will ever get into because इतनी मेरे पास knowledge है नहीं. But yeah, I like शिवजी. मेरे ईश देव हैं वो. तो ईश देवता हैं वो. So now like when doing that college application form, I would like to ask specifically for modern school, and because I don't know about other schools, but each school has different policy. Does your school have any college admissions or you hire someone from outside?
अच्छा तो ये 10th में जनरली आई गेस दिस क्वेश्चन कम्स अमंगस्ट आता है एंड क्या होता है you do have to like my school has 2 counselors. I feel दूसरे स्कूल में भी होते होंगे फॉर श्योर काउंसलर होते हैं. ऐसा क्यों बोल रही हूँ बिकॉज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पास होने के लिए काउंसलर का वो लगता है स्टैम्प या कुछ काउंसलर का अप्रूवल लगता है. In my school what they don't give letter of recommendation or transcripts outside counselors. They're like अप्लाई करना है तो हमसे ही करवाओगे और कुछ नहीं करोगे. अच्छा सेम एंड लिमिट भी होती है अप्लाई करने की. लाइक फॉर आवर स्कूल इट्स 10 colleges. लिमिट आई डोंट थिंक कोई लिमिट है. अच्छा जितने एसेस लिख लो उतने. जितने एसेस लिख लो. एंड ऑस्ट्रेलिया का मेरा स्कूल काफी ब्लैंक था बिकॉज जितने बच्चे गए नहीं थे ऑस्ट्रेलिया. आई फील बाकी स्कूल्स अब थोड़े बेटर हो गए होंगे. आप स्कूल का काउंसलर यूज कर सकते हो बट क्या होता है समटाइम्स यू ब्लैंक अबाउट ऐसे कैसे लिखने हैं. एसओपी तो स्कूल काउंसलर हेल्प नहीं करता आपको. करेगा बट आपको इतनी अच्छी तरह गाइडेंस नहीं मिलेगी. आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी ना. वो आपकी ग्रामर चेक करेगा रोज आपको. इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा. सो फॉर दैट आई गॉट अ पर्सनल काउंसलर जिसने मेरे एसओपी के साथ हेल्प करी थी. एसओपी कहते हैं ना या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. हाँ एसओपी में हेल्प करी थी. मेरी प्रोफाइल बनाने में हेल्प करी थी. ये सारे रिसर्च पेपर आपको उसने गाइड किया. नहीं गाइड दिया था मुझे. सो माय ऑडियंस वुड लाइक टू नो हाउ मच इट कॉस्ट. लाइक यू मस्ट हैव हाँ ओके. सो फॉर ऑल ऑफ द प्रोफाइल बिल्डिंग 1.5 लाख लगे थे. एंड फॉर द वीजा एप्लीकेशन अलग से हर कॉलेज की जो आपने एप्लीकेशन भरी सारे कॉलेजेस की वो फी अलग अलग होती है. मतलब हाँ नहीं आई एम आस्किंग लाइक वो उसने लिख के दी तो डिड ही चार्ज एनी कंसल्टेंसी फी और सर ओनली द कंसल्टेशन फी भी लगती है. पहले कंसल्टेशन फी में जाओगे उसकी $4,000-5,000 रुपीस लग जाएंगे. उसके बाद आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए 1.5 लाख देंगे. उसमें सब इंक्लूडेड है. गर्ल भी उन्होंने नहीं करवाया था. इंटर्नशिप्स भी उन्होंने नहीं करवाई थी. सब उन्होंने कराया था. आइल्स के लिए भी गाइडेंस वही दे देते कभी कभी बट मैंने खुद किया था. उसके बाद and then they told you about all the exams possible like if US से ना SAT की तैयारी शुरू कर दो. हाँ सब बता देते हैं. जैसे मुझे था कि लॉ से लॉ करना है या नहीं करना वो सब बता देंगे क्या करना है. उसके बाद प्रोफाइल बिल्डिंग करी. देन यू गो टू द काउंसलर्स आस्क कि आपको कैसा लगा है. टीचर से पूछो. एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा. फिर उसके बाद यूकैस की एप्लीकेशन मैंने मोस्टली थ्रू स्कूल के काउंसलर्स करी थी. स्कूल में बैठ के कंप्यूटर्स खोल के पोर्टल चेक करती थी. ये हुआ नहीं हुआ. और उसके बाद यूके से ना बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है. तो वो सारा काउंसलर्स करते हैं. यूके का मोस्टली काउंसलर बेस्ड स्कूल काउंसलर बेस्ड मोस्टली. तो आप फ्री में भी कर सकते हो. स्कूल के उससे कर सकते हो. हाँ but लेकिन every university have their own charge like up to $100 or $50 per university का एडमिशन एप्लीकेशन फी भी लगती है पर मुझे याद नहीं कितनी लगती है. हाँ दैट उसके बाद कनाडा की आल्सो दे कैन हेल्प. इंडियन कॉलेजेस में कैसे अप्लाई करते हैं. ओके तो आपके स्कूल में वो आते होंगे फेयर्स लगते होंगे यूनिवर्सिटी फेयर्स. उनमें जाके दे विल गिव यू रिप्रेजेंटेटिव. जैसे मुझे यूबीसी जाना था तो यूबीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते स्कूल में. मैंने उनका ईमेल लिया फॉर कनाडा. फॉर यूबीसी का आया था बाकी मुझे पता नहीं. हाँ यूबीसी के फॉर श्योर आए थे. तो उसमें आई गॉट द रिप्रेजेंटेटिव की ईमेल में मैंने क्वेश्चन आंसर्स पूछे. वो बहुत अच्छी होती. वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थी बहुत अच्छी तरह. So this is where we have to struggle. This is where we have to fight. इसमें थोड़ा बहुत ऐसा बहुत लॉस्ट फील होगा. अगर हो रहा है अभी भी ऑलरेडी तो that means you're going right. अगर लॉस्ट फील हो रहा है तो मतलब you going on the right path. अब मेन क्वेश्चन है ये तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज तो इट्स वेरी कॉमन सब हेल्प करते हैं. इंडियन यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन कैसे करते हैं. डीओ के लिए तो सपोज आपने सीयूईटी दिया. स्कोर आया. वहां जाके आपने बात की. हाँ अपनी सीट बुक करवा दी. हाँ लेकिन बाकी एनएमआईएमएस अशोका इनमें भी सीट बुक का ही होता है. इनमें एंट्रेंस टेस्ट कब देने होते हैं. अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है. जैसे जो मैंने दिया था वो एनपैट था. कब दिया था आपने ये. अच्छा मैं आती हूँ. इट वाज मेरे बोर्ड्स के टाइम पे ही में मेरा 5 अप्रैल को साइकोलॉजी का बोर्ड था. उससे एक वीक पहले मेरा एनपैट था. एनपैट के 2 टाइम्स होते हैं. तो वहां जाना पड़ा था आपको मुंबई या दिल्ली में. नहीं दिल्ली में यहीं पे लाइक नॉर्थ दिल्ली में ही था. 5 minutes away from my house. नॉर्थ दिल्ली का सेंटर मुझे बहुत पास मिला था. और आई डोंट नो इंडिया का दैट मच. अप्लाई नहीं किया कोशिश नहीं करी. सिर्फ एमएमआईएस का पता था. सीट बुक करा दी. फिर उसके बाद जाना नहीं था. बस खत्म. इंडिया का आई डोंट नो दैट मच. But I can tell a few external counselors if you want. One is Athena. Athena में yeah one of the like one of our batchmates got to UPenn. From Athena. But I've heard Athena is very expensive. It is super 30 lakhs something. बहुत expensive Athena. But if you can afford then Athena is like the best place you can go. The counselor I used was Jitin Chawla. South X में है office. Then I guess it was Atul Bansal. समथिंग लाइक दिस. अतुल बंसल. वो मोस्टली साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए बेस्ट है. बहुत वेल नोन है एंड बहुत अच्छे. वन काउंसलर आई एम करंटली
listening to a lot is Shirish Gupta. ऑनलाइन यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइक उसकी वीडियोस देख रही हूँ मैं, बट उसकी जो वो होती है कंसल्टेशन होती है दैट टेक्स 5000, बट ऑनलाइन होती है वो. Shirish Gupta, but he is amazing. He'll help you out. डिड यू एवर टेक? मैंने अभी कॉलेज के लिए ली. अभी आप कॉलेज से जाने के बाद ली? कॉलेज की जात की मुझे अब समझ नहीं आ रहा लाइफ में जाकर ग्लोबल लग्जरी मैनेजमेंट करनी है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या करनी है, तो उसके लिए आई वेंट टू शीश गुप्ता. शीश गुप्ता अगेन स्कूल के लिए भी अमेजिंग है. ही विल गाइड यू थ्रू. काफी बच्चों के यूपेन वगैरह में भी हुए हैं शीश गुप्ता. पता लाइक द फर्स्ट एक्सपीरियंस, लाइक द डे दे लेफ्ट, दैट नाइट लेफ्ट, ओह आई वाज क्राइंग. यू क्राइड? आई वाज क्लास में भी आल्सो क्या हुआ था, तो मैं घूम गई थी. तो मेरा था, अभी भी याद है मुझे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ट्यूटोरियल था. अच्छा. दोज आर प्रैक्टिकल क्लासेस, जैसे हमारे सीबीएसई में प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, उसमें ट्यूटोरियल्स होते हैं. तो मैं गलती से पता नहीं कहाँ पहुंच के फोरकास्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की क्लास में जाके बैठ गई, because मैं घूम गई. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इतनी माइंड बहुत चल रहा था कि दे लेफ्ट, तो उसके वजह से कुछ चल रहा लेफ्ट, तो मैं ऑलरेडी जोन में नहीं थी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको एक पीडीएफ मिलता है टू डू बिफोर हैंड द क्लास. मैंने करा, तो हमने अब तो मैं क्लास में जाके सब आंसर करूंगी. आई मेरी तो क्लास में कुछ नहीं आता था बिकॉज मैं गलत क्लास में थी. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई रियलाइज लेट. हाँ, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा. आई वेंट बैक होम एंड सेड आई डोंट वांट टू डू इकोनॉमिक्स. मुझसे हो ही नहीं. यू रिग्रेटेड? आई रिग्रेटेड, बट फिर मुझे बाद में पता चला कि वो क्लास ही गलत थी. एंड तो फिर उसकी धीरे क्या लाइक एवरीथिंग स्टार्टेड टू सेटल और दिल्ली के लोग मिले मुझे, बहुत ओह टॉक्सिक दिल्ली लगे. कैसे? वेस्ट दिल्ली वाले या साउथ दिल्ली वाले सारे. या ईस्ट दिल्ली वाले? सारे दिल्ली के भाई. रजौरी वाले भी, ओह. साउथ दिल्ली वाले भी. ओह. हाँ साउथ दिल्ली वाले सोबो भी आई हैं. साउथ दिल्ली. हाँ बॉम्बे के भी. सोबो के भी आए. सोबो के इतने, बॉम्बे के मैंने नहीं देखे इतने, मतलब इतने. वो तो यूएस ही जाते होंगे. हाँ हम लाइक धीरूभाई अंबानी के बाद यूएस ही जाएंगे ना, यू ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. हाँ प्रॉब्ली किसी नॉर्मल यूनि या ओपी जनरल गए होंगे, सो आई डोंट नो. हाँ ओपी. बट देन अगेन तो बहुत टॉक्सिक फ्रेंड्स बने थे मेरे. तो टॉक्सिक फ्रेंड्स? तो बहुत गंदे. फर्स्ट सेमेस्टर में ही? फर्स्ट सेमेस्टर बहुत टॉक्सिक ग्रुप, लाइक द मोस्ट टॉक्सिक. ड्रामा भी हुआ लाइफ में? मेरे साथ तो नहीं हुआ पर्सनली, अच्छा, बट जो ग्रुप था, आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप वेरी जल्दी बिकॉज़ आई गॉट टू नो अच्छे लोग नहीं हैं. वेक अप सेट की तरह रियलाइजेशन हो गई कि आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू डू द इक्वालिटी. लाइक स्क्रू ऑल ऑफ दिस, अपने पे ध्यान दो. मैं रोई वहां पे. अच्छा. लाइक आई यूज्ड टू कॉल मॉम कि मम्मा मेरे दोस्त नहीं बन रहे यहाँ पे, एंड आई बहुत रोई हूँ मैं. तो मॉम ने क्या कहा आपको? मॉम वाज लाइक it's fine. My mom has just one solution. Oh बेटा जल्दी टाइम से उठो, हनुमान चालीसा पढ़ो. अरे वो फ्रेंड्स थी, अरे वो पेट में दर्द है, बेटा जल्दी उठो, पानी पियो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा. संकट मोचन है पीछे, पढ़ो. ठीक है. तो चलो मुझे लगा चलो मम्मा बोल रही है करके देख लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट डे हनुमान चालीसा पढ़ी, रात को सोई. नेक्स्ट डे मेरी डेट शीट आ गई. आई एम लाइक अमेजिंग. नया संकट आ गया. मेरा बर्थडे बहुत लोनली बना था मेलबर्न में. दैट्स व्हाट आई एम गोना से. यार आई क्राइड ऑन बर्थडे ओनली. कोई दोस्त नहीं थे और सेटल नहीं हुई थी. नोबडी बॉट लाइक जस्ट 18th बर्थडे था? 18th था मेरा एग्जैक्टली. एंड जिन लोगों से मैं एक्सपेक्ट करी थी दे वुड डू समथिंग फॉर मी, दे नॉट. स्टोरी भी डाली बर्थडे विश की? कुछ भी नहीं डाला भाई. मतलब जिनसे मैं बहुत एक्सपेक्ट करी थी उन्होंने कुछ नहीं. बट फैमिली ने तो विश किया. फैमिली, ओ मम्मा लेफ्ट बिहाइंड अ गिफ्ट फॉर मी विद अ फ्रेंड. ओह. सो एंड इंडिया के फ्रेंड्स भी अच्छे थे. फ्लावर्स वगैरह भेजे घर पे, केक्स भेजे. सो हम लोग अपना देश, भारत वाले लोग. मुंबई रह जाती यार. मुंबई में एनएमएमएस जाते. हाँ वही जाती. वही आई फील दैट इज द ओनली कॉलेज जो इंडिया में अच्छा मेरे मतलब. अच्छा. ओह. पर इको? बच्चे भी इको भी. और मैं वहाँ पे इको नहीं करती. वहाँ पे मैं बीबीए करती. बीबीए करते हैं? मैंने किया था. मेरा हो भी गया था एनएमआईएमएस में. अच्छा. एंट्रेंस टेस्ट दिया था? हाँ मैंने दिया था. इम्पैक्ट दिया था मैंने. अच्छा. इजी था? हाँ मुझे इजी लगा. और उसमें सेक्शन होते हैं इंग्लिश के, मैथ्स के, वर्बल रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे. तो वो पार्ट हाँ हो गया, मेरा हो गया था. इसमें बहुत वो थी, स्केप्टिकल थी. अच्छा. कि मैं इंडिया रुकूं या बाहर जाऊं. बीच में पापा ने बोला था रुक जा. अच्छा. बाहर मास्टर्स कर लियो जो करना है. बट आई वाज लाइक नहीं, आई वांट टू गेट. लोग रोकते हैं बहुत. पापा ने बोला था दैट इफ यू नॉट रेडी यू कैन स्टे बैक. वो आती फीलिंग. सब कर दूंगा, पूरा कंफर्ट दूंगा. पूरा ब्राइब हुई थी मैं यहाँ पे. फुल ब्राइब ही मिली थी. बट देन यू चोज दिस सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी. इट्स बेटर टू स्टे ब्रोक देयर इन मेलबर्न देन
because this time will never come back. कम बैक एंड गाड़ी वापस आ सकती है कभी भी, लेकिन एक टाइम कोई वापस नहीं आएगा. जितनी फ्रीडम मुझे बाहर मिली है, फ्रीडम के साथ साथ पार्ट टाइम्स करा है, बहुत एक्सपीरियंसेस मिले हैं लाइफ हाँ, में. so part time jobs कहाँ करे? Like I heard you worked in McDonald's. Yeah, Lord first it was like Lord of the Fries में किया. अच्छा, Lord of the Fries. Lord of the Fries, you know. नहीं, I don't know what अरे कैसे पता? Lord of the Rings, Lord of the Fries. Lord of the Fries में तो वहाँ पे तो it was fine but low wage थी, तो फिर वो Netflix movies की टाइप रह रहे थे, जैसे कैरेक्टर्स करते हो वो पार्ट टाइम हाँ जॉब. वो वैसा ही था. बट नाउ अब मैं जाऊंगी तो I'll get a better job. गोल है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन. भाई वहाँ पे नहीं मिल रही ऑनेस्टली. इफ पीपल अच्छा. से कि ऑस्ट्रेलिया जाओगे जॉब मिल जाएगी, श्योर नहीं मिलेगी. मेरे 2-3 फ्रेंड्स आर ट्राइंग. पार्ट टाइम नहीं मिलेगी ना, मेन वो वाली जॉब तो मिल जाएगी आफ्टर अंडरग्रेड. वो भी पक्का नहीं, पार्ट टाइम ही नहीं मिल रही तो मेन वाइट कॉलर जॉब्स कैसे हैं. हाँ. ट्राई कर रहे हैं बट अभी पार्ट टाइम ही मिलने में बहुत टफ हो रहा है. सो देन अगेन हाँ, तो फिर अब थोड़ा सीरियस इशू पे आते हैं गाइस, लिटिल बिट सीरियस. सो डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म ऑस्ट्रेलिया में इज इट? Also one thing, if you come into Australia or Melbourne, you know Melbourne overall, is that आपको वहाँ पे Asians बहुत मिलेंगे. अच्छा, एशियंस, यू मीन साउथ ईस्ट एशियंस? Asians, oh shit, I was about to do something very stereotypical. Asians, जापान वाले, इंडोनेशिया वाले, थाईलैंड वाले, सिंगापुर वाले, कोरिया वाले, वो वाले एशियंस. टिपिकल साउथ ईस्ट एशिया वाला आ गया. टिपिकल वही वाले मिलेंगे एशियंस. बहुत है, लाइक यू विल फील आउट ऑफ 100% ऑफ द पॉपुलेशन 70% आपको स्मार्ट भी बहुत होएंगे. हाँ, स्मार्ट भी बहुत होएंगे. हाँ है. एंड वहाँ के ना सुपर रिच बैकग्राउंड से आते हैं. सुपर रिच बैकग्राउंड. सुपर रिच, लाइक क्लास में दे वेयर Chanel की जीन्स, LV की जैकेट्स, शूज विल बी सीधा, आईफोन्स, LV एयर ट्रेनर्स, आर्क लाइट्स पेन कराएंगे. क्रेजी. सो फॉर 1 मिनट यू विल फील वो होएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इंफीरियर फील होगा फॉर 1 मिनट. एंड ताइवान के लोग आई सीन थोड़े एरोगेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ द मेन सेक्टर्स, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत भारी भारी सेक्टर्स हैं यार ये, मतलब. तो वो सारे कंट्रोल बाय चिंकीज. हाँ, कंट्रोल बाय चिंकीज है एक्चुअली. उनका डिपार्टमेंटल स्टोर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग चेन है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे बहुत अच्छी कॉम है उनकी. और पंगा मत लो बिना बात में. तो एशियन विल ओनली सपोर्ट एशियन ओनली, नॉट एन इंडियन. ऐसा होता है, मैंने देखा है. इंडियंस डिस्क्रिमिनेट टुवर्ड्स इंडियंस. अच्छा, might sound crazy but that is what I faced. Like पहले ऑर्डर लिया मैंने. हाँ. And ऑर्डर लिया तो मैंने what would you like to have, and मेरे accent से उनको लगा नहीं कि मैं इंडियन होंगी. तो somehow I don't know, फिर मैंने जो बर्गर बनाया था तो मैंने बोला 2 बर्गर चाहिए हिंदी में. And they got to know I'm Indian. तो from that moment, just right the moment they said टेबल पे खाना ले आना, हिंदी में ही बोला. और इतना रूडली बोला because they got to know I'm an Indian. तो दैट्स व्हाट आई सीन कि इंडियंस के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं. वो होता है कि वो कॉम्प्लेक्स है कि हम आ गए, ये कैसे आ गए. हाँ, दैट सीन. अगर इंडियन स्टोर मैनेजर्स होंगे आपको कम पे देंगे, या आपसे आपको अच्छी शिफ्ट्स नहीं देंगे. जैसे पब्लिक हॉलिडे में डबल पैसा मिलता है. और ये कंपैरिजन में कोई और ऑस्ट्रेलियन या कोई ब्रिटिश होएगा तो आपको अच्छी. हाँ, जैसे कोई ग्रीक हो या आपके साथ हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है. अच्छा, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन जब टेबल पे खाना जाना, वो वेरी रूड. I've seen Chinese people also discriminate towards Indians a lot. The Kashmir border. Okay, yeah. And so कोई सबसे most tragic incident हुआ हो जैसे ऑस्ट्रेलिया आके, या कभी इंडिया की बहुत याद आई हो, कभी कुछ ऐसी something like except jet spray and all that stuff, लेकिन कभी कुछ. Oh, that's what faced a lot. Jet spray तो major missing है. मैंने तो पिक्चर लगा दी अपने वॉशरूम. You will be missed. You will be missed. नहीं, लगता कोई tragic emotional incident जब भारत की याद आई हो. I feel I was very love deprived there. Like sometimes I wasn't feeling well, sometimes my body had given up. वही लोनली कोई कहते हैं, मम्मी हो किसी से खाना बना दो, खिला दे यार, काम कर आ रही हूँ, बॉडी टूटी हुई है. एंड हाउस हेल्प्स होती है ऐसे घर पे, कोई बस आई फील कि कोई खाना ही खिला दे, मतलब कोई गरम रोटी खिला दे. समटाइम्स यू जस्ट फील लाइक दैट. बट आदत तो जाती कुछ टाइम बाद. जैसे हाँ, इफ यू नॉट फीलिंग वेल, इफ योर बॉडी हैज गिवन अप ड्यूरिंग any time, and but you'll have to walk, no, because गाड़ी है ही नहीं वहाँ पे, so you'll have to walk kilometers and kilometers and kilometers. कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि कोई रिक्शा वाला नहीं मिल जाएगा बीच में. वन डे का एज इन वन टैप का. फिर आप मेलबर्न 15 एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर 15 बारी घूमो, 30 बारी घूमो, कोई पैसा नहीं लगेगा. $5 टैप करो. बट देन अगेन इंडियंस हम टैप नहीं करते, पता ही नहीं चलता. ओहो, कौन आपको देख रहा है करने में. बट वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, तो मेक श्योर जब ऑफिसर्स हो उनके सामने टैप कर दो.
हाँ बट नहीं हो तो घूमो। दिल्ली मेट्रो की तरह ये नहीं खुलेगा वो गेट टैप करोगे वैसा कुछ नहीं है। टैप करना पड़ता है, बट ऑफिसर्स होंगे तो टैप, कभी कभी ऑफिसर्स नॉर्मल कपड़े में होंगे। एंड इट्स ऑस्ट्रेलिया का जैसे जनरली लोग कहते हैं इट्स फार चीपर देन यूके एंड आई डोंट नो यूएस। व्हाई डू पीपल से दैट, बट बहुत महंगा है। एंड अच्छा, मेलबर्न तब भी ठीक है, यू गो टू सिडनी यू विल गेट जस्ट इतनी सी कॉफी फॉर $7। सुपर एक्सपेंसिव नो, $420 420 रुपीस की सिर्फ इतनी कॉफी मिल रही है। एंड अब फाइनल प्लान क्या है कि आफ्टर अंडरग्रेड मास्टर्स डू यू वांट टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया ओनली और कम बैक टू इंडिया? विद गॉड्स ग्रेस अगर रही तो आई वांट टू गेट पीआर वहीं पे। सो Permanent residency. फर्स्ट थिंग टू फिगर आउट इज दैट आई एम डूइंग बीए इकोनॉमिक्स। तो पहले ऑनर्स करना नहीं करना वो पहले डिसाइड करना है। अच्छा, फोर्थ step ईयर one. ऐड ऑन, एक ईयर ऐड ऑन हो जाएगा। 3 फीस साल फीस का है। सब भी होगी। फीस वगैरह हाँ वो भी सब मैनेज करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं पार्ट टाइम कर करके रेंट निकाल लेते हैं अपना, वो सब करते हैं। अब मैंने वो सब नहीं किया, मैंने अपने शौक पूरे किए थे। एसेंशियल्स की हुडी ली, वर्साचे का परफ्यूम, जो लेना जब पापा मम्मा है तो फिर क्या जरूरत है पार्ट टाइम की? नहीं पार्ट टाइम आई फील होनी चाहिए, जितना भी पैसा हो बट होनी चाहिए पार्ट टाइम। चलो ये तो हुआ। फिर उसका मेन गोल इज टू गेट पीआर देयर। गेट पीआर देयर। कॉल फैमिली टू ऑस्ट्रेलिया या फैमिली को दिल्ली में रखना है? नहीं गेट माय पेरेंट्स बाहर। सो पीआर के लिए 85 पॉइंट्स अच्छे होते हैं। तो हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, जैसे इफ यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेलबर्न। कब तक मिल जाता पीआर? लाइक व्हेन कैन यू अप्लाई? द आइडल एज इज 25 to 32। बैकअप प्लान है कोई? इंडिया 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 हाँ है, सोच रखा है। अगर जॉब नहीं मिली आई कम बैक टू इंडिया। एंड फिर देन अगेन मेरा पॉइंट ये आता है कि अभी आई कैन नॉट टेल कि मेरा प्लान इट्स वेरी अनसर्टेन। हाँ मतलब अगर पीआर मिल रही है वहाँ पे पॉइंट्स मेरे हो पा रहे हैं तो अप्लाई भी। अब अगर पीआर नहीं मिली तो डेफिनेटली इंडिया, बट इंडिया में भी मेरा एक पॉइंट है कि गुरुग्राम में कोई अपना घर लेना है। गुरुग्राम में रहना है अपना घर, छोटी सी गाड़ी चाहिए नॉर्मल फॉर द टाइम भी, बहुत अर्न करना है, ग्रो करना है। गुरुग्राम में क्यों? दिल्ली क्यों नहीं? नॉर्थ दिल्ली मुझे पसंद नहीं। अच्छा दिल्ली पसंद ही नहीं है। नॉर्थ दिल्ली मुझे पसंद ही नहीं। साउथ दिल्ली टू मच, टू साउथ, टू प्रिटेंशियस। अच्छा एंड वेस्ट दिल्ली दिल्ली तो कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। गुरुग्राम अपना अकेले रहो। नोएडा भी तो है। नोएडा नहीं भाई, नो नहीं वाइब नहीं है। बट थिंग इज कि गुरुग्राम में क्या है, ग्रो करके अपनी थार खरीदनी है, ये करना है, वो अच्छा। करना है, वो सब बस चलता रहेगा। बड़े लंबे प्लान है आपके। होने चाहिए, वरना यू विल बी लाइक लॉस्ट इन द वे कि कहाँ जाना है। और जब टाइम आएगा ना ऐसे टाइम निकल जाता है। दैट इज व्हाट माय डैड इज आल्सो सेइंग कि सेम तो ऐसे निकल गया। पता नहीं 5 चलेगा सेम तो निकले, अब सेकंड सेम स्टार्ट हुआ खत्म, थर्ड सेम हुआ खत्म, क्या करना है आगे? लाइफ में से खत्म हो जाती है। व्हाट इज योर प्लान? एंड आई वाज ब्लैंक, आई एम लाइक शिट आई डोंट नो। तो ही वाज लाइक यार सर्च व्हाट यू वांट, डू ग्लोबल लग्जरी मैनेजमेंट, फैशन पसंद था फैशन परस्यू कर लो, ग्लोबल लग्जरी मैनेजमेंट करो, मेडिकल मैनेजमेंट कर लो, डू व्हाटएवर यू वांट, बट हैव समथिंग इन योर माइंड ना, किसके लिए वर्क कर रहे हो, व्हाट्स द पर्पस व्हेन यू वेक अप। जस्ट नॉट बीइंग अ स्लेव। हाँ ऐसे there's no point of running on a track where you don't know where the track will end up. एंड हमारी जनरेशन में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि वी डोंट नो व्हाट टू डू। कर रहे हैं बिकॉज दूसरे कर रहे हैं। हाँ you why did बैड वैगन के साथ जा रहे हैं हम। हाँ like why did you buy these shoes? Oh because trend में है, comfort है नहीं, looks है नहीं, but बस because trend trend में में है है। इसलिए। As per the podcast so far, I heard like you were interested in law also, that you wrote law का research paper. So what made you change your major from law to eco? ऐसा हुआ क्या? And BBA भी था in your mind. हाँ so I'll So tell you, I am also in the same mindset right now because I am confused between law, business, and finance and eco. अच्छा तो choose हाँ, कैसे obviously। करा आपने? अच्छा तो बीकॉम का फाइनेंस अकाउंटिंग ये तो मैं पर्सनली नहीं बताऊंगी, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ, पहले मेरा था कि मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है। अच्छा। मुझे बायोटेक्नोलॉजी करनी है। Biotech हाँ. People are like right now many people are doing it. हाँ. तो मैंने फिर फिजी ज्वाइन किया, मुझे पता चला मेरा एप्टीट्यूड नहीं है, इंटरेस्ट है एप्टीट्यूड नहीं है। तो फिर जी से क्या हेल्प होती है? IIT के लिए? फिजी IIT जेई जेई क्रैक करने के लिए? लेकिन मुश्किल था वो। या 7th में 9th ग्रेड का पढ़ा रहे थे। 7th में you joined फिजी? हाँ 7th में। तब से मुझे लगा था कि मैं बायोटेक शायद कर पाऊंगी, मुझे बायो में अभी बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने 10th में 12th की बायो पढ़ ली थी। अच्छा ओहो। हाँ You were a science student? नहीं मतलब वो आती है Stream कौन सी ली थी? आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड humanities मैथ्स, and अप्लाइड maths। मैथ्स। तो ऑनलाइन पीडीएफ एनसीईआरटी की ऑनलाइन पीडीएफ पूरी पढ़ ली मैंने 10th में ही। इंटरेस्ट था मुझे बायो में बहुत, बायो, बट साइंस में एप्टीट्यूड नहीं था, चेंज। उसके बाद 10th में मैथ्स ली, मुझसे बहुत मुश्किल से मैथ्स हुई थी, बट पापा सेड डू नॉट लीव मैथ्स, अच्छा। डू नॉट लीव मैथ्स। तो आई एंडेड विद ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, फाइनेंस, मतलब अकाउंटिंग मेरी एप्टीट्यूड नहीं था, अकाउंटिंग ये मैथ्स मेरा है ही नहीं,
मतलब कभी था ही नहीं। तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली, मेरे सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स, फैशन स्टडीज़, इंग्लिश, अप्लाइड मैथ्स एंड साइकोलॉजी। तो ये सारे लिए अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब लॉ करते हैं। लॉ में रिसर्च पेपर लिखा, मैंने कोर्स करे ऑनलाइन, येल से कोर्स किया मैंने ऑनलाइन, कोर्सेरा के थ्रू। मज़ा ही नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, बैठ ही नहीं रहा। अगर लॉ करते तो और 90 और ऐसा था 90% अप्लाई हो चुका है। मतलब अब सोचो 90 अब लॉ के लिए करना है, एसओपी लॉ के ऊपर बन गया, सब लॉ पे हो गया। ये तो बॉलीवुड मूवी का स्टेप हो गया, प्लॉट ट्विस्ट आ गया। एंड वन डे आई गो क्राइंग टू पापा कि पापा लॉ में कुछ मजा ही, मतलब कुछ फील नहीं हो रहा लॉ के लिए, मैं बहुत हार्टलेस हूँ लॉ के लिए पढ़ते हुए, पैशन नहीं जनरेट हो रहा मेरा। इको कैसा आया? सो ही सेड अभी सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एंड आई सेड इको, मैथ्स, साइकोलॉजी, फैशन। पापा ने बोला फैशन नहीं, बिकॉज फैशन इज वेरी अनकन्वेंशनल एंड कोई इतना स्कोप भी नहीं दिख रहा, फैशन नहीं। बोला साइकोलॉजी, कितनी साइकोलॉजी कर सकती है लोगों को ट्रीट? मैंने बोला नहीं, आई क्राई बिकॉज आई नो वेरी सेंसिटिव। साइकोलॉजी कट आउट हो गया। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स में मैंने कोर्स किया, मुझे बहुत मजा आया, ऑनलाइन कोर्स किया कोर्सेरा में, बहुत मजा आया। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ईजिली समझ आ रही है किया। एंड देन फिर आपने बोला मैनेजमेंट भी कर सकते हो। मैनेजमेंट में इतनी मैथ्स की जरूरत, मतलब इतना भी कोर मैथ्स नहीं, इकोनॉमिक्स में तभी स्टेटिस्टिक्स है। मैनेजमेंट ट्राई किया, मुझे समझ आया, बट वो इंडिया में मैनेजमेंट था। कनाडा में मैनेजमेंट ओकनागन कैंपस में था, यूबीसी में था इकोनॉमिक्स। तो यूबीसी में अप्लाई किया, इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया मैंने, बट यूबीसी कैंसिल। फिर ऑस्ट्रेलिया में मैनेजमेंट के लिए बीकॉम होना था, बीकॉम कर नहीं सकते थे, कॉमर्स थी नहीं पास में, तो आई एंडेड विद इकोनॉमिक्स। सही जर्नी थी, like crazy maybe it was destined for you, eco was something was for you, for me, हाँ, that's a good journey वाला part I am still struggling with maths, but eco I feel I will end up, मुझे पता है, या तो मार्केटिंग में या ग्लोबल लग्जरी मैनेजमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में। देखते हैं आफ्टर 5 years क्या होता है। अगेन अनदर पॉडकास्ट। सेकंड पार्ट, अगर लॉ करते, अगर इंडिया में करते लॉ, तो कभी सोचा था ओपी जिंदल जाने का? ओपी जिंदल नहीं होता, या तो फ्लेम्स होता या सिम्बायोसिस होता। अच्छा, और ना और क्लैट देना पड़ता, और वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज डूइंग लॉ, बट बाहर से, एग्जिटर से, यूके। अच्छा, ओपी जिंदल की बड़ी हेट है। ओपी जिंदल की आई हेट फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। तो इट इज फाइन इफ यू फिगरिंग आउट क्या है क्या नहीं करना है। फर्स्ट सेम में तो चल जाएगा, लग रहा है बीकॉम है, और अगर नहीं है बीकॉम, इट्स फाइन, डू नॉट पैनिक, चेंज। Just like हो जाएगा, चिल मत करो, पुट इन एफर्ट्स ऑब्वियसली, बट डोंट पैनिक, लाइक ऐसे घबराओ मत। फेल भी होगा सब्जेक्ट, इट्स फाइन, वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, लाइक डू नॉट पैनिक। सही मोटिवेशन है ये। हाँ, फेल होगा ही होता है। सेम 1 इज अ वेरी रॉकी रोड, इट्स लाइक यू विल क्राई, यू विल लाफ, you will fall, you'll get up, full movie going on, you're the main character, but sometimes you'll realize it's fine to be a side character as well. एंड कोई फेल हो गए, कोई नहीं, बस $5,000 ही तो लगने हैं, बस बट इट्स फाइन। आई फील पेरेंट्स वुड थिंक कि व्हाट इज शी एडवोकेटिंग, बट आई फील जितना आप गिल्ट में हो, जितना डिसअपॉइंटमेंट हो, बच्चा उससे 10 टाइम ज्यादा गिल्ट में। आई थिंक ये पॉडकास्ट ज्यादा बच्चों ज्यादा पेरेंट्स को सुननी चाहिए। पेरेंट्स विल लाइक टू लिसन। आई डू गेट इफ आई टेल माय पेरेंट्स हैव फेल्ड, crazy, but if parents can get this, जितना disappointment आपको, उससे 10 times ज़्यादा guilt बच्चे को होगा that he or she has failed the subject. So it's fine, but first sem में it is meant to happen. So I would say parents, be prepared for the worst thing, like the worst circumstances ever. The child drunk calling you, the child is telling you that shit, I've got a very bad migraine, my health is depleting day by day, I cannot study, I'm not making friends, I failed a subject. Something has happened, I've fallen on the road, a junkie followed me. All of this, it's fine. It is actually fine. You need to, if you're sending a child abroad, you need to be open-minded in something, you know. It's fine, the child would go out partying, 2 बजे आइसक्रीम खाने जाएगा, obviously सब होगा. So chill, हो जाएगा. And before we end this podcast, I would like to say, share some tips, like how you have changed your personality, or what you have learned from this first semester in Australia, and like how you would like to guide other international students on how to live their life, and like how to control, like enjoy and as well study, and as well make a productive use of this time. अच्छा, okay, ठीक है. तो do not try to gel in that much. और if you've tried your luck with one group, नहीं बनना छोड़ो. Don't force it. Let things be. It's fine. नहीं बनना ना, कभी लगता है कि अब कोई ग्रुप ही नहीं है तो इन्हीं के साथ घूमना पड़ेगा. मैंने भी ऐसे किया है, but it's fine. Eventually find a better group. Second, ग्रुप्स के ग्रुप्स बनते हैं.
मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप का ग्रुप बनता है, टू ग्रुप्स की भी अलग टू ग्रुप्स बनते हैं ना। क्या होता है, इफ यू आर अ बीए स्टूडेंट ट्राई जेलिंग अप विद बीकॉम के स्टूडेंट्स। नाउ आई फील मेरा ग्रुप इज बीकॉम के स्टूडेंट्स। नाउ आई हैव गुड फ्रेंड्स who are doing BCom. One of my friends is from Singapore, one of my friends is from Thailand. अब मेरे इंडियन फ्रेंड्स कम हैं, कोई नहीं, वो तो इंडिया में है ही, वो इंडिया में तो है ही, इंडिया में तो है ही। एंड प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रुप्स के अगर आप ज्यादा सोशलाइज करोगे बेटर। गो टू पार्टीज, आई फील गो टू पार्टीज, यूनी के पार्टीज, एक दो बियर्स पी लिया, एक दो टेकीला शॉट्स फॉर नेटवर्किंग करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए। एंड यूनी के पार्टीज होती हैं, बॉलीवुड नाइट्स होती हैं, गो, इट्स गुड, एक्चुअली गुड। सेकेंड, अगर पता होता है कि आपकी तबीयत खराब होने वाली है, या पता होता है आपको 2 दिन अब आपके बहुत वेस्ट में जाएंगे, सो यू स्टडी बिफोर हैंड, पुल एन ऑल नाइटर, सैक्रिफाइस ऑन स्लीप, यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑन समथिंग। if you sacrifice on studying the next day, sacrifice the sleep the same day, you have to sacrifice on something to get something. That is one thing. Sacrifice. Learn how to sacrifice. Learn how to manage your time. हाँ, कभी-कभी क्या होगा? Like if you increasing this, तो यहाँ से decrease कर दो, हाँ। पैसे ब्लैक फ्राइडे सेल होगी, $800 लग गए, पैसे ही नहीं अब खाने पे सैक्रिफाइस करो। पैसे वाला पॉकेट मनी आती है मंथली, वो पॉकेट मनी आती है, बजट के साथ आती है। I don't know what happened with me that एक ग्रुप था and एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप रिलेटेड था, and I started spending time with the other group and बहुत वाइब मैच हो गई भाई, मतलब। And then you left them. I left them, I literally left them, khatam. Now that group is breaking apart. So it was good that you left early. Crazy. Now I have like a very good, like very close, I don't know from which country she is, Singapore I guess. She's a very good friend of mine. So I feel, yeah, मिल जाएगा, you'll find your company. Like don't worry. Australia में I haven't find my लोग, like India में मेरे लोग हैं, but Australia में I haven't found such kind, so I'm eagerly waiting for SEM 2. हो जाएगा सब, हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक हो जाएगा। but जो साथ cry if you want to cry, do not suppress it, cry भाई। sometimes used to happen, पार्क है साइड में, बहुत अच्छा स्विंग है, वहीं पे बैठ के रो लेते थे। do you have any side hobby in Australia? cry नहीं, but I'm taking my guitar इस sem, so jamming वो सब। हाँ, like क्या कोई book टाइम वेस्ट किया मैंने, ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं करा। I regret I've wasted a lot of time, but अब पढ़ूंगी स्पेनिश में, थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगी। ¿Cómo estás? Muy bien, y tú? So हाँ, बहुत टाइम के बाद रियलाइज होता है वो सब, बट that is too, मतलब वो बहुत mature ideology है। अपना टाइम लो, figure your own pace, figure your own everything, enjoy your life, चल मारो भाई ना, टेंशन मत लो, हो जाएगा। but there is a very thin line between enjoying your present and destroying your future. बहुत thin line है। Discover what that line is for you. That's all. So that's it for today's podcast. That was Manak Alra, a common man but with special views. So now enjoy guys, as she said, and अब टेंशन मत लो, लाइफ में होएगा जो होएगा देखा जाएगा, एनी टाइम वापस ही आएगा, तो बस enjoy. एंड अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो याद रखना ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। Actually, बाय।